हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम साਰਿਆਂ ਨੂੰ भैया वेरी वेरी गुड ईवनिंग गाइस। ਤੁਸੀਂ सोच रहे होंगे कि भाई आ की हो गया, ईशा मैम क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਵੋਕੈਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ 50 ਈਡੀਅਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ 50 ਈਡੀਅਮਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਈਡੀਅਮਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ PYQ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ 10 ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਡ ਬਾय ਰਿਚ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਿਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ प्लूटोक्रेसी। की कहा जाता है? चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, आई थिंक येलो विल बी परफेक्ट। ठीक है, प्लूटोक्रेसी। एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਿਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? प्लूटोक्रेसी ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਨ ਦਿਸ 3 to 4 days ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਿਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ? प्लूटो कहते एक इंसान है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी इंसान है मैम। ठीक है, काफ़ी रिच इंसान है, प्लूटोक्रेसी बोला जाता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट हो गया वन हु इज़ ऑल पावरफुल। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल कॉल्ड एज ऑल पावरफुल। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਓਮਨੀਪੋਟੈਂਟ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਓਮਨੀਪੋਟੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਓਮਨੀਸਾਇੰਟ। ठीक है, ओमनीसाइंट बोलिया जाता है। देखो भाई कितने भी तुसी दिक्कत होवे कुछ भी होवे एक ना छोटा जिहा चार्ट बना लिया करो। मैं तुहानू दस दिंदी हां फर्स्ट पॉइंट अपने कोल की सीगा, कहंदे मैम अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच। अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय रिच ओनू की बोलिया जाता है? ओनू बोलिया जाता है प्लूटोक्रेसी। की बोलिया जाता है? प्लूटोक्रेसी बोलिया जाता है। कहते वन हू नोज एवरीथिंग। ठीक है, वन हू नोज की सीगा भाई अपने को? वन हू नोज एवरीथिंग। ठीक है, वन हू नोज एवरीथिंग तो साइंटिस्ट ही होगा फिर, है ना? नोज एवरीथिंग की कहना है आप इनू? ओमनीसाइंट बोला जाता बेटा। देखो मैं लिख के थोड़ा याद करवा रही हूँ ओमनीसाइंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने को आ गया भाई नेक्स्ट आप की गल करांगे कि मैम कहते वन हु इज़ ऑल पावरफुल। इन्ना ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। ठीक है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल तो उन्होंने आप की बोलते हैं बेटा? ओमनीपोटेंट। मैं क्या बहुत पोटेंशियल है परसन दे विच। ठीक है, आई होप ये वन वर्ड जेडे सबसटीट्यूशनस ने थोनू याद हो रहे होंगे। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच बेटा प्लूटोक्रेसी। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग सारा कुछ ये पता मतलब कि साइंटिस्ट वांगू है ओमनीसाइंट। पावरफुल वन हु इज़ ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। एक ऐसा जिहा बंदा जिहड़ा हर जगह मौजूद हुंदा है, प्रेजेंट। ठीक है, एट एवरीवेयर। ठीक है, एट सेम टाइम बेसिकली उन्होंने की बोलते होंगे ओमनी प्रेजेंट।
की बोलना जी ओमनी प्रेजेंट बोल देना है। तो तुसी देख सकते हो गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच इज कॉल्ड एज प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड एज ओमनीसाइंट। वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड एज ओमनीपोटेंट। इट मीन्स अ पर्सन हैव्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इटसेल्फ, ठीक है। प्रेजेंट इट एवरीवेयर, वन पर्सन हु इज प्रेजेंट इट एवरीवेयर, दिस इज कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट। आई होप बेटा 4 डन हो गए होंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है सारे जने डन करी चलो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक यह जिहा क्वेश्चन है जो कि शायद PSSB ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ अगर मैं गल करा या फिर अगर मैं PSTET की गल करा, अगर मैं CTET की गल करा या फिर ETT की गल करा, मोस्टली सारे एग्जाम दे विच आह वाला क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों आंदा ही आंदा है। मतलब कहते मैम अगर फॉर एग्जाम्पल आप गल करते हैं कि कोई भी स्पीच तुसी प्रिपेयर की, ठीक है, सॉरी कोई भी स्पीच डिलीवर कर दी बट तुसी प्रिपेयर नहीं की, मतलब थोड़ी प्रिपरेशन नहीं सीगी, उन्होंने की बोलिया जाता है? दिस कॉन्सैप्ट इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। तो मैं लिख देनी है एक्सटेम्पोर का मतलब होंदा एक्सटेम्पोर का की मतलब होंदा अ स्पीच दैट इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक यह जिहा पर्सनैलिटी जो कि ज़्यादातर हर एक चीज़ नू पॉजिटिव ऑरा के तरीके नाल मतलब मनूगा कि मतलब उहदी लाइफ दे विच कोई भी सिचुएशन आ जाए बट हमेशा एक पॉजिटिव इनहांस मतलब उहदे माइंडसैट इन्ना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा है, इन्ना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स उहदे बंदे दे विचों आंदियां ने, मतलब ब्राइट साइड द पर्सन लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स ऑफ द सिचुएशंस। बेसिकली द पर्सन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक। ये पर्सन आप की बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। सेम जगह पे अगर कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है उन्होंने की बोलिया जाता है बेटा पैसिमिस्ट बोलिया जाता है। की बोलिया जाता है? पैसिमिस्ट बोलिया जाता है। तो जोड़ा अपना चार्ट है ईशा मैम इज नोन एज बेसिकली फॉर चार्ट अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच प्लूटोक्रेसी। की बोलिया जाता है? प्लूटोक्रेसी। उस तो बाद वन हु नोज एवरीथिंग साइंटिस्ट होगा बंदा ओमनोसाइंट। ओमनोसाइंट मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ बेटा, ठीक है, कुछ दिन अपनी प्रैक्टिस चलूगी। वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड एज ओमनो पोटेंट। पोटेंशियल बहुत है बंदे दे विच, ठीक है। प्रेजेंट एट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अगर आप कहिए स्पीच डिलीवर्ड, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। की बोलिया जाता है इनू? एक्सटेम्पोर बोलिया जाता है, ठीक है। अगर आप गल करिए ब्राइट साइड्स, बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट साइड्स देखता है, मतलब पॉजिटिव है, तुसी ब्रैकेट दे विच पॉजिटिव लिख सकते हो थोड़ी मैमरी दे लिए। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक, कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अ पर्सन हु लुक एट द नेगेटिव साइड उन्होंने आप की बोलते हैं बेटा पैसिमिस्ट बोलते हैं, पैसिमिस्ट बोलते हैं। तो आई होप 7 थोड़े वन वर्ड जोड़े है थोड़ा याद हो गए होंगे अच्छे तरीके नाल। नैक्सट आप गल करते हैं स्पीच डिलीवर्ड वाला भी हो गया। नैक्सट कहते वन हु लिव्स एट सेम टाइम एज अनदर। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं क्या अज का टाइम चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। अगर अज के टाइम पर कोई राइटर उठ के आता है, ठीक है, एक राइटर उठ के आता है तो अपने वाले टाइम पीरियड दे विच अगर वह कोई टाइम पीरियड शुरू हो जाता है तो उन्होंने आप की बोलते हैं कंटैंपरेरी। तुसी पंजाबी दे विच क्या होंगे? समकाली बोलिया जाता है इन्हों। की बोलिया जाता है? समकाली बोलिया जाता है। मतलब वन हु लिव्स एट सेम टाइम एज अनदर, ठीक है, उन्होंने आप की बोलते हैं कंटैंपरेरी। की बोलते हैं जी? कंटैंपरेरी। प्लेस ऑफ बुक्स इज कॉल्ड एज लाइब्रेरी, वेरी ईजी। एंड द 10 पॉइंट्स मैंने कहा सी डेली 10 पॉइंट्स प्रैक्टिस करांगे बेटा। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, जोड़ा बंदा फुट ते वॉक करता है ना, ठीक है, मतलब स्पेशली बोलिया उन्होंने बोलिया पेडिस्टेरियन। की बोला जाता है? पेडिस्टेरियन, पेडिस्ट्रियन। वॉक ऑन फुट इज कॉल्ड एज पेडिस्ट्रेरियन। तो गाइज डेली ही थोड़े 10 वन वर्ड तो थोड़ी वोकैब दी क्लासेस कुछ देर तक रहनगियां। वन वर्ड सबस्टिट्यूशन 10 डेली आप करांगे। किन्ने बजे करांगे? 7 बजे। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तुसी 10 दे 10 लर्न करने ने। तो अगर सारे लर्न हो गए तो क्लास वधिया लगी तो भाई डन मैसेज